revision for our periodic test, and the chapter today for revision is polynomials, right? And I will be giving you questions related to quadratic polynomial. Now the question arises, what exactly is a quadratic polynomial? A quadratic polynomial is a polynomial which has degree 2, which has degree 2. Degree का meaning the power of x will be 2, right? And how does a quadratic polynomial looks like? Ax square plus bx plus c. Ax square plus bx plus c is called as a quadratic polynomial. Now what is 0? 0 means the value of x which will make the polynomial as 0. That is what is called as 0 of a polynomial, right? So if alpha and beta are zeros of the above polynomial, means the value of a alpha square plus b alpha plus c will be 0, and the value of a beta square plus b beta plus c equal to 0, right? That is the meaning of 0. 0 means the value of x for which the value of polynomial becomes equal to 0. Now let us see the first question. For the polynomial x square minus 3 root 3x minus 12, find the 0 and establish a relation to relate the 0 and the sum and product of the zeros with their coefficient. Like this type of question is already there in NCERT book. This type of question is also there in which book? NCERT book. Now first we have to find the value, find the zeros of this polynomial, find the value of zeros of this polynomial. So how to find it? First we have to go for factorization, splitting of middle term, factorization. So how will we write? X square minus 3 root 3x minus 12 is my required polynomial. If I see here properly, then the product is how much? Minus 12. The product is how much? Minus 12. And what is my sum? Minus 3 root 3. What is my sum? Minus 3 root 3. That means I require two numbers such that their product is minus 12 and the sum is minus 3 root 3. दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आना चाहिए और दो नंबर को प्लस या माइनस करने से हम लोग का आना चाहिए माइनस 3 रूट 3. यहाँ पे एक चीज केयरफुली देखो, ये जो नंबर है 3 रूट 3, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है. ये क्या है? इरेशनल नंबर है. मतलब यहाँ पे जो दो नंबर आएगा इट हैज टू बी इरेशनल नंबर्स, नहीं तो सम कभी भी इरेशनल नंबर होगा नहीं. यहाँ पे 3 रूट 3 चाहिए ना, वो एक इरेशनल नंबर है और मेरे को पता है अगर दो नंबर का सम इरेशनल होने वाला है उसमें से एक या एक इरेशनल होना इंपॉर्टेंट है. अब देखो, अगर हम 12 के बारे में सोचते हैं, 4 इंटू 3 12, हाँ या नहीं? 4 इंटू 3 12. 4 इंटू 3 को ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 3 और रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 3 और रूट 3. तब भी मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, आएगा या नहीं? अब मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए? माइनस 3 रूट 3. एक ले लेंगे माइनस 4 रूट 3 और एक ले लेंगे प्लस रूट 3. एक ले लेंगे माइनस 4 रूट 3 और एक क्या लेंगे? प्लस रूट 3. तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस 12 और सम कितना आएगा? माइनस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3. तो फिर इसको फैक्टराइज करते हैं. एक्स का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 12. हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. सिर्फ मिडिल टर्म में क्या था? एक इरेशनल नंबर था, इसलिए मैंने इरेशनल नंबर लेके सॉल्व किया. फिर क्या होगा? अगर x कॉमन लूंगा, x माइनस 4 रूट 3, इफ आई टेक रूट 3 कॉमन, देन व्हाट विल कम? x minus 12 by root 3. Some may be having confusion how it is coming as 4 root 3. अगर रूट 3 कॉमन ले रहे हैं तो 12 by root 3. अब देखो 12 by root 3 का वैल्यू कितना होगा? 12 by root 3 मतलब 12 यहाँ इंटू रूट 3 या इंटू रूट 3 कर सकते हैं या नहीं?
12 के साथ √3 डिवाइड करना है। 12 बाय √3 को अगर रैशनलाइज करेंगे, यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 √3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा है 4 √3 कितना हो रहा है 4 √3 x माइनस 4 √3 प्लस √3 इंटू x माइनस 4 √3 x माइनस 4 √3 ठीक है। सो आई गॉट द आंसर एज x माइनस 4 √3 इंटू x प्लस √3. So this is the value after factorizing x minus 4 √3 x plus √3. Factorization complete. अभी जीरो निकालना इजी है. We'll put the polynomial equal to 0. We'll put the polynomial equal to 0. अब polynomial को 0 कैसे करेंगे? x minus 4 √3 multiplied by x plus √3 is equal to 0. मतलब x बराबर 4 √3 और x इक्वल टू माइनस √3. पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आया? एक वैल्यू क्या आया 4 √3 और एक वैल्यू क्या आया माइनस √3. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4 √3 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस √3. अल्फा एंड बीटा आर जीरोस. So 1 0 is how much 4 √3 other 0 is how much minus √3. तो फिर मेरा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया फाइंड द जीरोस. फाइंड द जीरोस. व्हाट आर द टू जीरोस? द फर्स्ट जीरो इज 4 √3 एंड द सेकेंड जीरो इज माइनस √3. दो जीरो कंप्लीट हो गया. अब मेरे को क्या करना है? आई हैव टू शो द रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद देयर कोएफिशिएंट. ठीक है. अब मेरा फॉर्मूला क्या है बताओ? इफ द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, इफ द टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा? माइनस b by a. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा इनटू बीटा? c by a. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a एंड अल्फा इनटू बीटा इज c by a. राइट. अब हम लोग आराम से कर सकते हैं. राइट. अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 √3, बीटा कितना है माइनस √3. सो व्हाट इज द आंसर? 3 √3. 4 √3 माइनस √3 3 √3. अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? माइनस b by a. सो माइनस what is the value of b? What is the value of b? b means the coefficient of x. What is the value of b? Minus 3 √3 by a. What is the value of a? Coefficient of x square. How much? 1. So how much I am getting? Minus 3 √3. So only 3 √3. Same आ गया. The value is coming as same. Second one, alpha into beta. What is the value of alpha? 4 √3. What is the value of beta? Minus √3. Right. Alpha into beta. 4 √3 into minus 3. How much? 4 into minus 3. √3 into √3 is 3. So 4 into minus 3 equal to minus 12. 4 into minus 3 equal to minus 12. Right. Now alpha beta, another formula. What is the formula? C by a. What is the value of c? What is the value of c? Minus 12. And what is the value of a? 1. So here also I am getting the same answer. Minus 12 and minus 12. Right. So this type of question is given in the NCERT, which you can easily do in this process. First we will find out the value of alpha and beta, and then we will find alpha plus beta, and then we will find alpha into beta by two process. One by putting values, one by putting the value of the coefficient.
ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, राइट. Now we'll go for another question in which also the same formula will be used related to sum of zeros and product of zeros. All of you must have written. I was doing the question very slowly. Let us come to the next question. In the polynomial 2x square minus 7x plus k, the sum of roots and the product of roots are equal. Sum of roots and product of roots are equal. Find the value of k. Very easy question, right? So sum of roots means alpha plus beta. Sum of roots means alpha plus beta. What is the formula of alpha plus beta? Minus b by a. Minus b by a. So what is the value of minus? What is the value of b? The value of b is minus 7. And what is the value of a? The value of a is 2. So I am getting 7 by 2. I am getting 7 by 2. Now is equal to product of roots. Let us also find the product of roots. Root is the other name of zeros. Okay, zeros and roots carry the same meaning. So alpha multiplied by beta. So alpha into beta formula is c by a. C by a. So what is the value of c? The value of c is k. What is the value of a? The value of a is 2. According to the question, the value of sum of zeros is equal to the product of zeros. The value of sum of zeros is equal to the product of zeros. So what is the sum of zeros? 7 by 2. And what is the product of zeros? K by 2. That means 7 into 2 divided by 2 will be equal to k. So the value of k is coming as 7. Value of k is coming as 7. Right? Very easy and very straightforward question. पहले हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ रूट्स निकाला, दोनों को इक्वल कर लिया. उसके बाद मेरा k का वैल्यू निकल गया. वो पहले क्वेश्चन से भी इजी है. जीरोस निकालना जरूरी नहीं है, जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिटन. ओके. In the polynomial 2x square minus 5x minus k, if the zeros are reciprocal of one another, if the zeros are reciprocal of one another, ये थोड़ा interesting है. Okay, let the two zeros be alpha and beta. Let the two zeros be alpha comma beta. What is the meaning of reciprocal? 2 by 5 का रेसिप्रोकल 5 by 2 होता है. 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2 होता है. 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2 होता है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्फा एंड बीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. अल्फा एंड बीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो व्हाट आई राइट? अल्फा इक्वल टू 1 by बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर. सो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 by बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज गिवन एज द जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. Zeros are reciprocal of each other. So the value of alpha into beta will be how much? 1. अगर अल्फा का वैल्यू है 1 by बीटा, तो फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा? 1. राइट. नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है. अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए मेरे पास एक और फॉर्मूला भी है. क्या फॉर्मूला है? c बाई. और हमारे जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल, उसमें c का वैल्यू क्या है? माइनस के, और a का वैल्यू क्या है? 2. ठीक है. पॉलिनोमियल का ये फॉर्म होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. c बराबर माइनस के, a बराबर 2. Now alpha into beta came as minus k by 2. Here alpha into beta came as how much? 1. दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए.
that means minus k by 2 equal to 1. So minus k equal to 2 and k equal to minus 2 is the final answer. This is 2 mark question, very easy question in which you can find the value of k easily according to the given condition, right? तो फिर अब तक सबको फॉर्मूला याद रह गया होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, राइट, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड. नाउ सी द क्वेश्चन. In the polynomial x square minus 4x plus 1, find the value of alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube. ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखता होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं. अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपका कहीं भी अल्फा और बीटा दिख रहा है ना, आपका पहला काम है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देना. सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देना. तो फिर अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय ए. सो इन दिस केस इट इज माइनस ऑफ माइनस 4 by 1, सो इट इज ओनली 4. ये काम में आएगा. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू बीटा? सी बाय ए. सी बाय ए, सी इज हाउ मच? 1, ए इज ऑल्सो 1, सो इट इज 1. यहां तक सबको समझ में आ गया, राइट? नाउ लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड. वो पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अगर आप लोग सही से याद करोगे, स्टैंडर्ड 9 में आपका एक फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फॉर्मूला आप लोग 9 में सीखे थे. अब a प्लस बी को भूल के आप लोग अल्फा प्लस बीटा ले लो. क्या ले लो? अल्फा प्लस बीटा. मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ये आपको पता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो कौन से क्लास में था? स्टैंडर्ड 9 में था. अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 4. वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 4. यहां पे क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है मेरे को, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 1. वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 1. So 4 square is how much? 16 equal to alpha square plus beta square plus 2. अब 2 को लेफ्ट साइड ले सकते हैं, क्या होगा? 16 minus 2 equal to alpha square plus beta square. So the value of alpha square plus beta square equal to 14. Alpha square plus beta square equal to 14. सबको समझ में आ गया? ठीक है. ये फॉर्मूला में जिस चीज का वैल्यू पता है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, और जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको मैंने निकाल दिया. मैंने एक और बिट भी दिया है. क्या दिया है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अब उसको कैसे निकालेंगे देखो. हाउ टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का 2 टाइप का फॉर्मूला है. मैं पहले इजी वाला यूज करता हूं जो आप लोग आराम से समझ जाओगे. एक फॉर्मूला था a प्लस बी होल क्यूब. क्या उसका फॉर्मूला था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी. स्टैंडर्ड 9 का ये एक आइडेंटिटी है. सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा. फॉर्मूला बिल्कुल सही है.
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देखो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अरे अल्फा बीटा का वैल्यू, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, 1 है ना, अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है ना। सो फिर 3 इंटू 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, फिर से 4। जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल देना इक्वेशन में। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इज 12। अब 12 को लेफ्ट साइड ले सकते हैं, 12 को लेफ्ट साइड ले सकते हैं। सो 64 माइनस 12 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हाउ मच, 52। दो चीज का वैल्यू आ गया, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब मैंने एक और क्वेश्चन भी दिया था, ऑल्सो फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। एक और क्वेश्चन भी था, आपने लिखा होगा, फाइंड अनदर पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब मेरा जो नया पॉलिनोमियल है, अब मेरा जो नया पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या है, एक है 2 अल्फा प्लस 1 और एक क्या है 2 बीटा प्लस 1। ये दो का नाम क्या हो गया है, जीरो। किस पॉलिनोमियल के लिए, नया पॉलिनोमियल के लिए। नया पॉलिनोमियल मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, उसका जीरोस क्या है, अल्फा बीटा नहीं है, उसका जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। जब भी जीरोस रहेगा मेरा काम क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। सम का मतलब दो जीरो को प्लस करना है सर, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, हाँ या नहीं, दो जीरोस को प्लस कर दिया। नया पॉलिनोमियल का दो जीरोस है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, उसका सम निकाल रहे हैं। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो फिर यहां पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा अंदर, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 4। वेरी गुड, वहां से देख लिया आपने। आंसर कितना आ गया, 2 4 8 प्लस 2 10। कितना आ गया, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10। अब मेरा क्या निकला, सम निकला, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है जीरो का। अब चलो जीरो का प्रोडक्ट निकालते हैं, अब चलो जीरो का प्रोडक्ट निकालते हैं। अब जीरो का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब P, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई करना तो आता है, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, 1 इंटू 1 1। हो गया, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब देखो सही से, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से 2 कॉमन जा रहा है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से 2 कॉमन जा रहा है। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो फिर 4, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1 है। फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है। वेरी गुड,
प्लस 1, कितना हो गया आंसर? 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13, कितना आ गया? 9 प्लस 4 13। अब पॉलिनोमियल निकालने का हम लोग का फेमस फॉर्मूला क्या है? पॉलिनोमियल निकालने का हमारे पास फेमस फॉर्मूला क्या है बताओ? वेरी गुड। हम लोग का पॉलिनोमियल जो नया वाला है उसका फॉर्मूला आपको पता था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स मतलब सम ऑफ जीरो, प्लस पी। ठीक है, तो फिर x का स्क्वायर सम कितना है? 10, सम यहाँ पे 10 आया हुआ है, 10x, और p कितना आया हुआ है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है।